हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। मैक्सवेल एंड वोल्ट्जमैन ने एक मैथमेटिकल थ्योरी गैसेस लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए प्रपोज्ड की, which is based on the fundamental concept that a gas is made up of a large number of particles or molecules in perpetual motion. Hence, this theory is known as kinetic molecular theory or the kinetic theory of gases. According to kinetic theory of gases, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग a gas consists of extremely small particles which are called as molecules and which are dispersed throughout the container, and the actual volume of molecule is negligible in comparison to total volume of gas. So, according to number one, the gas consists of extremely small discrete particles which are called as molecules dispersed throughout the container. The actual volume of molecules is negligible in comparison to volume of gas. Now the second point is gas molecules are constant rapid motion with high velocities. गैस मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रैपिड मोशन में बने रहते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, एंड दे मूव इन स्ट्रेट लाइंस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड चेंज डायरेक्शन ऑन ओनली कोलिजन. दे मूव in straight line and change the direction on the collision. Gas molecules are in constant random motion with highest velocities. They move in straight line and changes their path after only on the collision. And the next one point is the gas molecules can move freely independent to each other. वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई वांडरवाल्स फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स वहां पर एग्जिस्ट नहीं होता. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज all collisions are perfectly elastic. There is no loss of kinetic energy during the collision. All collisions are perfectly elastic. There is no
लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उनमें किसी भी प्रकार का काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। एंड द प्रेशर ऑफ द गैस इज कॉज्ड बाय द हीट्स रिकॉर्डेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की वॉल्स पर जो रिकॉर्डेड हीट्स होगा मॉलिक्यूल के द्वारा, वो ही गैस का प्रेशर होगा। द प्रेशर ऑफ गैस is caused by hits recorded on the wall of container by the molecules. And now the point 6 is the average kinetic energy of gas molecules is directly proportional to the absolute temperature. जो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल की, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो द काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द all gas molecules will be same at a given temperature. The average kinetic energy of molecules is directly proportional to the absolute temperature. That is, the average kinetic energy of all molecules will be same at a given temperature. इसलिए एक गिवन टेम्परेचर पर सभी मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, इक्वल होती है। और जो ये एजम्पशन, वो जो गैस इन एजम्पशंस को फुलफिल करती है, वो आइडियल गैस के नाम से जानी जाती है। ये सारी एजम्पशंस जो गैस फुलफिल करती है, वो आइडियल गैस के नाम से जानी जाती है। ए गैस दैट कन्फर्म्स A gas that confirms the assumption of kinetic theory is called as ideal gas. वो आइडियल गैस के नाम से जानी जाती है। नाउ वी विल डेराइव द डेरिवेशन फॉर द काइनेटिक गैस इक्वेशन और द काइनेटिक थ्योरी डेरिवेशन। लेट अस कंसीडर ए बॉक्स। दिस इज ए कंटेनर which is cubical. This is cubical container. The length of the face of any side is L. Momentum at this wall is mvx और इधर की ओर माइनस mvx के बराबर यहाँ पर ये मोमेंटम हो जाएगा। और ये जो टोटल लेंथ है वो आप देख रहे हैं L हो रही है। और इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास ये क्यूबिकल बॉक्स है जिसमें कि हमारी गैस कंटेंट है। Let us consider a gas of mass enclosed in a cubical vessel of the side L. Total number of gas molecules are N, and
velocity of molecules is v. So, according to kinetic theory, number one, gas molecule can move freely in any direction with a velocity v. Since velocity is a vector quantity, so v square is equal to vx square plus vy square plus vz square. Since velocity is a vector quantity, so v square is equal to vx square plus vy square plus vz square. The number of collisions per second on the फेस ए, सपोज हमारे पास जो फेस है वो ये ए है और इधर का जो बैक फेस है वो बी है. सेकेंड, द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड ऑन ए फेस ए ड्यू टू one molecule. Now let us consider that a molecule moving with a velocity vx along the x-axis between two faces A and B. यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है फेस ए और बी के बीच, और वो जब यहाँ पर मूवमेंट करते करते जब फेस ए से कोलाइड करता है, फेस ए को हिट करता है, तो वहाँ पर बी एक्स वेलोसिटी से हिट कर रहा है. तो वो जैसे ही हिट करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस बी की ओर को रिवल्ट हो जाता है और माइनस वी एक्स उसकी वेलोसिटी हो जाती है. ना वो यहाँ पर एल लेंथ, जो कि हमारी क्यूबिकल लेंथ है, वो एल लेंथ वहाँ पर ट्रेवल करता है. एल लेंथ ट्रेवल करने के बाद यहाँ पर ये ए फेज से इस फेज तक यहाँ पर जब मूव करता है, तो एल लेंथ मूव करने के बाद फेज बी पर फर्दर यहाँ पर स्ट्राइक करता है. फर्दर जब यहाँ पर स्ट्राइक करता है तो वो उसकी वेलोसिटी v माइनस वी एक्स से फर्दर यहाँ पर वी एक्स में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पर फर्दर वो फेस ए की ओर को मूवमेंट करने लगता है. जब वो फेस ए पर फर्दर स्ट्राइक करता है, अर्थात सेकेंड स्ट्राइक करता है, तो यहाँ पर दो स्ट्राइक के बीच में उसको टोटल 2l डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है. Therefore, the time between two collisions of phase A. Therefore, the time between the two collisions on the phase A equal to, ये हो जाएगा हमारा 2l upon Vx के बराबर. दिस विल बी द 2l upon Vx, और चूँकि यहाँ पर टाइम मेजर कर रहे हैं तो ये इतने सेकेंड हो जाएगा 2l upon Vx सेकेंड, यहाँ पर टोटल टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स ऑन फेस ए. नाउ द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, द नंबर ऑफ collisions per second will be equal to Vx upon 2l. Vx upon 2l यहाँ पर number of collisions per second होगी. Now the third one is the change in momentum. जब वहाँ पर वो A फेज से स्ट्राइक करके वापस जाता है और फर्दर वहाँ पर जो इम्पैक्ट आने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो मोमेंटम में कितना चेंज होता है. तो मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट, टोटल चेंज इन मोमेंटम. अगर टोटल चेंज की बात करें मोमेंटम में, तो मोमेंटम बिफोर द स्ट्राइक
एट फेज ए वो बराबर होगा इक्वल टू एम वी एक्स के एंड द मोमेंटम आफ्टर द स्ट्राइक एट फेज ए इक्वल टू माइनस एम वी एक्स के बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो गई है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एम वी एक्स माइनस एम वी इक्वल टू एम वी एक्स के यहाँ पर ये बराबर हो जाता है। बट द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड ऑन ए फेज ए ड्यू टू वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वी एक्स अपॉन 2l। Therefore, the total change in momentum per second on a phase A by one molecule will be the multiplication of momentum and the number of collisions per second. But the number of collisions per second on the phase A is equal to हमारे पास है वी एक्स अपॉन 2l के बराबर है। नाउ द टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड ऑन द फेज ए बाई वन मॉलिक्यूल, अगर वन मॉलिक्यूल के द्वारा टोटल चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2m वी एक्स मल्टीप्लाइड बाई वी एक्स अपॉन 2l के बराबर ये हमारे पास टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय द वन मॉलिक्यूल। और यहाँ पर ये वी एक्स दोनों इक्वल हैं तो 2m वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2l और एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल के बराबर ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर ये हमारा जो मोमेंटम चेंज है वो एक फेज पर हम एक फेज पर एप्लीकेबल कर रहे हैं, जबकि जो मोमेंटम है वो हमारा दूसरे फेज पर भी इतना ही जाएगा, सेम अमाउंट हमारा फेज बी पर भी जाएगी। तो दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो चेंज इन मोमेंटम ऑन बोथ अपोजिट फेसेज, the change in momentum on both opposite faces A and B will be double। ये हमारे पास डबल वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 2m vx स्क्वायर अपॉन l एंड the change in momentum along x, y and z axis ये हमारे पास हो जाएगा 2m vx स्क्वायर अपॉन l प्लस 2m vy स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस 2m vx वी जेड स्क्वायर अपॉन एल। और हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं 2m अपॉन एल वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर और 2m वी स्क्वायर अपॉन एल के बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा। चूँकि हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी है दोनों सब प्लस हो जाती हैं, सो दिस change in momentum will be 2m b square upon l. Now the total change in momentum due to impacts of all the molecules on the four axes of the box। ये हमारा एक मॉलिक्यूल का था, अब हम ऑल द मॉलिक्यूल्स के लिए निकालेंगे तो टोटल चेंज इन मोमेंटम हमारे पास पॉइंट फोर्थ द टोटल चेंज इन momentum by the all molecules of
gas on all phases. Let n be the number of molecules. Suppose यहाँ पर number of molecules की संख्या n है, which is moving with the different velocities. वो different velocities suppose v1, v2, v3, v4 and so on velocity से move कर रहे हैं, वो velocity से move कर रहे हैं. Now the total change of momentum due to impacts of all the molecules on all faces of box will be equal to the total change in momentum by all the molecules on all the faces. हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 2m अपॉन l v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन द ऑल फेसेस. मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई n equal to 2mn on L और v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अपॉन यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, and this will be the 2mn upon L or u square, where u square is the root mean स्क्वायर वेलोसिटी. ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अपॉन n, जब यहाँ पर हम इसके स्क्वायर के सम को डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूल से, तो दिस विल बी द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. नाउ द लास्ट इज कैलकुलेशन of pressure for change in momentum. चेंज इन मोमेंटम के कारण प्रेशर में कैलकुलेशन क्या होगी. सिंस फोर्स may be defined as the change in momentum per second. Force may be defined as the change in momentum per second, but pressure is equal to total force upon total area के बराबर होता है. प्रेशर इज इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया होगा. P will be equal to 2mn upon L u square into 1 upon 6 L स्क्वायर के यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा. L स्क्वायर यहाँ पर हमारा एरिया हो जाएगा 6L स्क्वायर 2mn u स्क्वायर अपॉन L. यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आई है, एंड द P will be equal to 1/3mn u स्क्वायर अपॉन L Q, और 1/3mn u स्क्वायर अपॉन V, सिंस क्योंकि V इजकल टू एल क्यूब यहाँ पर वॉल्यूम के बराबर है. सो PV इजकल टू 1/3mn u स्क्वायर अपॉन L, and this is the kinetic gas equation. This is kinetic gas
equation. This is kinetic gas equation. Now we will calculate the kinetic gas equation in terms of kinetic energy. Kinetic gas equation in terms of kinetic energy. If n be the number of molecules in a gas of mass m, Pv is equal to 1 by 3 m n u square, 2 by 3 n into 1 by 2 m u square, or Pv is equal to 2 by 3 n into E is the kinetic energy, since E is equal to 1 by 2 m u square, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है. E is the kinetic energy of one molecule. वन मॉलिक्यूल की सपोज काइनेटिक एनर्जी E है और Pv is equal to 2 by 3. यहाँ n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और E से तो n2 यहाँ पर E की वैल्यू हो जाती है, वेयर E is kinetic energy of all molecules. अगर हम सभी की बात कर रहे हैं तो ये ऑल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हो जाएगी, सिंस Pv is equal to RT for 1 मोल ऑफ गैस. 1 मोल गैस के लिए 2 by 3 E इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर RT के, और E इज इक्वल टू 3 RT अपॉन 2. ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ये गैस इक्वेशन आ जाती है. नाउ द डिडक्शन ऑफ बॉयल्स लॉ. क्योंकि हम इस इक्वेशन को डराइव कर रहे हैं, हमारी जो गैस इक्वेशन के जो गैस लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और ग्राम्स लॉ, वो सब इसको फॉलो करेंगे. तो उसकी इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में अब हम उन सारे लॉज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, डिड्यूस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या वो लॉ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरीफाई होते हैं या नहीं. अगर वो वेरीफाई होते हैं तब ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिडक्शन कर रहे हैं बॉयल्स लॉ का. एंड अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक theory, the kinetic energy of molecules is directly proportional to the absolute temperature. So 1 by 2 m n u square proportional to T, or 1 by 2 m n u square is equal to Kt, where K is the constant, or 3 by 2 into 1 by 3 m n u square is equal to Kt के यहाँ पर बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं इक्वेशन में हमारे, और ये 3 by 2 और 1 इंटू 1 by 3 एम एन यू स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर, और यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 by 2 पी वी इजकल टू के टी, और पी वी इजकल टू 2 by 3 के टी, वेयर के इज द कॉन्स्टेंट. सो विच इज द बॉयल्स लॉ. यही बॉयल्स लॉ है. एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस
is inversely proportional to the volume। यही हमारे पास बॉयल्स लॉ है। नाउ डिडक्शन ऑफ चार्ल्स लॉ। अगर चार्ल्स लॉ की बात करें तो यहाँ पर भी सिमिलर वे में है कि हमारे पास एट कांस्टेंट प्रेशर पी वी इक्वल टू 2/3 kT एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर विच इज चार्ल्स लॉ। यही चार्ल्स लॉ है। एट कांस्टेंट प्रेशर the volume of gas is directly proportional to the absolute temperature। This is the Graham's law. Now deduction of Avogadro law। अगर एवोगैड्रो लॉ की बात करें तो हमारे पास फॉर 1 मोल पी वी इक्वल टू 1/3 m1 n1 u1 स्क्वायर और दूसरे गैस मॉलिक्यूल के लिए पी वी इक्वल टू 1/3 m2 n2 u2 स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू। सो 1/3 m1 n1 u1 स्क्वायर इक्वल टू 1/3 m2 n2 u2 स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। और हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जो वेलोसिटीज है वो सभी की सेम है, एवरेज वेलोसिटीज सबकी सेम है। सो n1 इक्वल टू L2 व्हेन टेम्परेचर ऑफ बोथ गैसेस आर सेम। जब दोनों गैस के टेम्परेचर सेम होंगे, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो वेलोसिटीज हैं वो एवरेज वेलोसिटी भी सेम हो जाएंगी। सो n1 इक्वल टू n2 विच इज एवोगैड्रो लॉ। नाउ द डिडक्शन ग्राहम्स लॉ। अगर ग्राहम्स लॉ की बात करें 1/3 m1 n1 u1 स्क्वायर इक्वल टू 1/3 m2 n2 u2 स्क्वायर बाई एवोगैड्रो n1 इक्वल टू n2 हो जाता है तो यहाँ पर m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू m2 u2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और u1 अपॉन u2 स्क्वायर इक्वल टू m2 अपॉन m1 और u1 अपॉन u2 इक्वल टू m2 अपॉन m1। ये हम यहाँ पर कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिए तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और u1 अपॉन u2 इक्वल टू r1 अपॉन r2 इक्वल टू स्क्वायर रूट m2 अपॉन m1 which is the Graham's law of distribution, which is Graham's law। यहाँ पर वेलोसिटीज है या वेलोसिटी हमारी रेट ऑफ डिफ्यूजन के बराबर होता है। सिंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, सिंस रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटीज। सो हमारे पास ये ग्राहम्स लॉ आ जाता है। इस प्रकार से हमारे पास ये काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है, उसको हम काइनेटिक गैस इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर यहाँ पर
जो गैस लॉज हैं, बर्न्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, यहाँ पर हम उन सबको डिड्यूस करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि वेदर इट विल ओबे दिस इक्वेशन और नॉट। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारी गैस इक्वेशन यहाँ पर इस काइनेटिक गैस इक्वेशन को ओबे कर रही है। सो दिस इज द करेक्ट गैस इक्वेशन और करेक्ट काइनेटिक थ्योरी या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैस इक्वेशन।